Good morning, students. Good morning, all of you. I am your teacher Mayank Singh from MB Patel English Medium Secondary and Higher Secondary School. Today we are going to discuss importance of controlling. So in this video we will discuss about importance of controlling. In previous video we have already discussed about the characteristics and controlling meaning. Okay, meaning of the controlling and characteristics of controlling. So in this video we will discuss about importance of controlling. So once again we will discuss the controlling meaning. Okay, so just a quick revision for meaning of controlling. Controlling is an important stage of management without controlling. Okay, so controlling is necessary the achievement of managerial objectives. But controlling is what? Controlling is an important stage of management. Without controlling an organization is like a chariot without a charioteer. Okay, तो कंट्रोलिंग क्या है? अगर कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोलिंग के बिना कैसा है, जैसे कोई एक रथ हो, उसमें रथ को चलाने वाला जो है वो नहीं अवेलेबल है, या फिर कोई गाड़ी है, गाड़ी पे ड्राइवर अवेलेबल है, तो बिना ड्राइवर की गाड़ी कैसे चलेगी? सो कंट्रोलिंग इज़ that activity by which a management can make its working process more efficient and effective. So the main objective of controlling is to check the errors or shortcomings of the past and stop the recurrence. Okay, तो controlling का main objective क्या है कि जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो भी एरर्स पास्ट पे जो एरर्स आई हैं, दैट इज़ टू बी स्टॉप्ड और रिकरेंस ऑफ दैट एरर्स, ठीक है, दोबारा वो रिपीट ना हो, दैट इज़ टू बी चेक बाय कंट्रोलिंग प्रोसेस. ओके, सो मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इज हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो हेल्पफुल इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. कंट्रोलिंग फाइंड आउट एरर्स, ठीक है, अगर कंट्रोलिंग एरर्स फाइंड आउट कर रहा है, एंटरप्राइज के जो भी करेक्टिव मेजर्स है, सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, देन आवर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड, और द कंट्रोलिंग इज हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो एज अ रिजल्ट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकम्स ईजी as all activities are performed according to a plan. Second is control on activities. Various activities of an undertaking and functional areas like organization, ठीक है, sales, employees, financial and quality aspects etc. can be controlled. ठीक है, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं? फंक्शनल एरियाज जो है ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोडक्शन है, सेल्स हैं, एम्प्लॉयज़ के हैं, फाइनेंशियल एरिया है. ओके, क्वालिटी एस्पेक्ट्स एज वेल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलिंग एक्टिविटी. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू थर्ड पॉइंट विच इज मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव. मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव. अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट, प्लानिंग लेज डाउन द पाथ एंड कंट्रोलिंग हेल्प्स टू फाइंड द डेविएशंस एंड इम्प्रूव दैम. ठीक है, सो कंट्रोलिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट, ठीक है, प्लानिंग क्या है कि वो कोई पाथ, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कि एक पाथ दे रहा है किसी को कि इसमें आपको चलना है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, बट कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग उस पाथ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी डिविएशंस हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयज़ जिसको देख के भटक जाते हैं इधर उधर, डेविएशंस का मीनिंग है कि उनको पाथ से दूसरे पाथ में चले जाना. ठीक है, डैट इज़ टू बी controlled by the controlling process. So thus, due to controlling, achievement of objectives is possible and planning becomes successful. ठीक है, तो ये obstacles को हटाता है, hurdles को हटाता है, and successful for achievement of objectives is done. Fourth point is coordination between various activities. Okay, controlling is helpful in coordinating various activities of the business enterprise. ठीक है, controlling क्या करता है? It is also coordinating with various activities like production is coordinating with marketing, marketing is coordinating with finance, finance is coordinating with HR management. Okay, so all the activities are connected with each other through controlling process. So it is only because of control that coordination is possible. कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल होगा? जब कंट्रोल रहेगा, कंट्रोलिंग प्रोसेस विल बी देयर. Now come to fifth point, which is evaluation of activities.
The activities are compared with predetermined standards and evaluated. ठीक है, तो evaluation means एग्जामिनेशंस और चेकिंग करना, कंट्रोल करना कि हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वेदर इट इज़ गोइंग ऑन करेक्टली और नॉट. ठीक है, तो जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी वर्क हो रहा है हमारा, जो हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स है, जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स रखे हैं कि इस स्टैंडर्ड पे या इतने ये स्टैंडर्ड पे ही वर्क होना है या इतने यूनिट्स प्रोडक्शन होना है तो इतने यूनिट्स हम वन डे पे इतना यूनिट प्रोडक्शन करेंगे. मार्केटिंग का है तो हमारा सेल्स का टारगेट क्या है. ठीक है, तो दैट शुड बी फुलफिल्ड और टू बी इवेल्युएटेड विद द कंट्रोलिंग प्रोसेस. सिक्स्थ इज रिमूव्स डिविएशंस. ठीक है, डिविएशंस मीन्स ऑब्स्टिकल्स. ओके, सो कंट्रोलिंग एम्स एट टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. ठीक है, तो जहाँ पे हमें लग रहा है डिविएशंस हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कोई हर्डल्स आ रहे हैं, दैट वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शंस रिगार्डिंग दैम. So it examines the causes of deviations and then takes corrective measures so that deviations can be reduced. ठीक है, तो जहाँ पे हमें लग रहा है, जहाँ पे कोई causes है, कहीं पे deviations हैं, कहीं पे किस वजह से problems create हो रहा है, that we have to reduce or we have to take the corrective measures to reduce that deviations. Okay. Seventh point is necessary for delegation of authority. Controlling is essential for delegation of authority as well. Okay, after the work of delegation it is the responsibility of the supervisor to supervise. ठीक है, हमने डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में हमने रीड किया था कि व्हाट इज़ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, जब हम पावर्स को डेलीगेट करते हैं, जब हम पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द एम्प्लॉयज़, अमंग द वर्कर्स, देन वी हैव ऑल्सो टू check the responsibilities whether the supervisors or whether the workers, whether the managers they are doing proper work or not. ठीक है, तो मैनेजर सुपरवाइजर्स जो हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे एंड मैनेजर्स आर टू बी चेक बाय द टॉप लेवल मैनेजर. सो ही कैन डेलीगेट अथॉरिटी बट नॉट अकाउंटेबिलिटी. ठीक है, कोई भी जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, जिसको हम अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है, वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से करना है. ठीक है, हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं बट अकाउंटेबिलिटी को नहीं. ठीक है, अगर हमने किसी को कोई वर्क दिया है, अगर हम किसी को कोई वर्क दे रहे हैं कि आपको ये करना है, ठीक है, तो वो अथॉरिटी अपनी डेलीगेट कर सकता है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी, जो वर्क उसको असाइन हुआ है, दैट वर्क ही हैव टू डू. ठीक है, सो अकाउंटेबिलिटी इज नॉट टू बी डेलीगेटेड. मूव ऑन टू 8th पॉइंट विच इज़ फाइंड आउट एरर्स. Supervision and evaluation of activities of subordinates is necessary and this is done by controlling process. Okay, तो supervision, evaluation है, ठीक है, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, कंट्रोलिंग के थ्रू. सो एक्टिविटीज़ आर ऑब्जर्व्ड बाय कंट्रोल. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, दैट इज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोलिंग प्रोसेस. So controlling also helps to find out errors, difficulties, defects and deviations and remove them so that they are not repeated in future. ठीक है, तो जो भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स जो जहाँ से अराइज हो रहे हैं, that deviations have to be checked and corrective measures have to be taken that problems will not arise in our future. Okay. 9th point is long-term planning. Long-term planning is on the basis of the information which is gathered about present organizational activities control can be used to make long term assumptions. ठीक है, long term assumption में कंट्रोलिंग क्या करता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म प्लान्स को कंट्रोल कर सकें और कंट्रोलिंग वे पे हम लॉन्ग टर्म प्लान्स को हम प्लान कर सकें, उनको हम एनालाइज कर सकें, हम उनको इवेलुएट कर सकें. ओके, सो दैट इज़ टू बी डन थ्रू कंट्रोलिंग प्रोसेस. 10th point is helpful in direction or directing. Controlling simplifies directing. ठीक है, directing means to give directions or guidance to the employees. Okay, तो controlling उसको planned way पे करता है. So it supervises the personnel, gives guidance and directions in their difficulties. ठीक है, and that so that activities are performed as planned. ठीक है, तो जो भी गाइडेंस है, जो भी डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंट्रोल वे पे कर रहे हैं. तो कंट्रोलिंग उसको क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है. If the controlling process is there in the organization, then all the activities can be done very smoothly. Okay. Now come on to the last point, which is barometer of efficiency. Barometer means,
ठीक है, एक इक्विपमेंट है जो किसी को मेज़र करने के लिए, एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए हेल्पफुल होता है. सो इन बिजनेस एंटरप्राइज इट इफ़ कंट्रोल is exercised efficiently, so management becomes more efficient. मैनेजमेंट तब more efficient बन जाता है. सो कंट्रोलिंग इज कॉल्ड द बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. तो बैरोमीटर को हम कैसे कंसिडर कर रहे हैं, जिससे किसी भी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को हम मेज़र कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं कि हाउ दैट एफिशिएंसी इज़ टू बी काउंटेड और हाउ द मैनेजमेंट इज़ टू बी वर्किंग. ठीक है, इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. सो इट इज़ ऑल्सो अ बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी. Okay, so these are the 11 points which is to be included in the importance of control. So hope you have understood these points and make the notes for the same. Okay, and thank you all.